Hello everyone. Today we are going to study about features of micro and macroeconomics. In earlier video, you studied about historical review, meaning, definition of micro and macroeconomics. Let's have a small recap. Meaning of microeconomics. Microeconomics means small part of a thing. Microeconomics thus deals with a small part of a national economy. It studies the economic actions and behavior of individual unit such as individual consumer, individual producer or a firm, the price of a particular commodity or a factor, etc. Macroeconomics means small unit. पूरे इकोनॉमी का स्मॉल इकोनॉमी में से स्मॉल पार्ट का स्टडी करना मतलब माइक्रो इकोनॉमी. ओके, नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स को और डिटेल में पढ़ने के लिए वी विल स्टडी इट्स फीचर्स. सो हियर लेट्स गो. फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट वन, study of individual economic unit. As we have studied definition, in definition itself it is written that it studies small individual economic units. Means whatever small economic parts are there in a whole economy, microeconomics studies that small individual parts separately. For example, particular household, particular industries, individual prices, wages, etc. ओके, तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट में पूरे इकोनॉमी में से कोई भी एक सिंगल यूनिट को डिटेल में स्टडी करना मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. सेकेंड वन, स्लाइसिंग मेथड. सी, while studying with the help of microeconomics, we have to slice whole economy into small individual parts. After that also, that only we are going to study that small part in detail. That is called microeconomics. To understand this concept, I am giving one example. See, if apple is there, and to study that apple, we have to slice the apple into small individual part. So after eating each and every slice of that apple, we can conclude about taste quality of that apple. Same way, in microeconomics, to study the whole economy, we have to slice the economy into small part like industries, firm, then service sector, primary sector, etc. Understood? Then, third point is price theory. Microeconomics is also called as a price theory. What is that? Price theory means microeconomics studies individual economic unit. It studies by using slicing method. It studies the part of that economy in detail. So, because of these two features, it becomes possible to determine price of any commodity. जैसे कि मैं बना रही हूँ पेन का प्रोडक्शन, और वो पेन का प्रोडक्शन के बाद उसका प्राइस डिसाइड करने की बारी आती है, तो मैं वो पेन का सूक्ष्म परीक्षण करूंगी या फिर स्मॉल स्टडी करूंगी. तभी तो मुझे पता चलेगा कि ये पेन के लिए मुझे कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम मुझे आना चाहिए, ये पेन का डिमांड कितना होगा और मैं कितना सप्लाई कर सकता हूँ. तो ये माइक्रो स्टडी करने के बाद आई कैन डिसाइड द प्राइस ऑफ दैट पेन. सेम वे इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो, micro study helps to determine price of a particular commodity. Same, it helps to determine price of various factors of production like land, labor, capital, entrepreneur. ये जो 4 factors of production है, उनको क्या रिवॉर्ड देना चाहिए, कितना रिवॉर्ड देना चाहिए, इनके लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल स्टडी करता है. फिर उसके बाद उनका रिवॉर्ड डिसाइड किए जाते हैं. दैट इज वाई microeconomics is also called as a price theory. Okay, next, partial equilibrium analysis. In microeconomic studies, any two variables are studied at a time. Rest of the variables are assumed that
दे आर कांस्टेंट। अभी आगे जाके आप थर्ड लेसन में डिमांड और डिमांड के बारे में एक लॉ, एक नियम पढ़ने वाले हैं। सो वो शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जैसे भी कोई भी चीज मार्केट में आती है तो वो चीज परचेस करते वक्त डिमांड और प्राइस दोनों को ध्यान में रखते हैं, राइट। बाकी सब चीजें को इग्नोर किया जाता है। प्राइस ज्यादा है तो उसका डिमांड कम होता है, प्राइस कम है तो उसका डिमांड ज्यादा होता है। सो हियर दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर। तो ये लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो ये लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करते वक्त वी आर स्टडिंग ओनली टू वेरिएबल्स एट अ टाइम, दैट इज प्राइस एंड डिमांड, but rest of other factors we assume that they are constant, that is known as partial equilibrium. Okay, then next, based on assumption, अभी मैंने ऊपर के पॉइंट में बोला पार्शियल इक्विलिब्रियम करते वक्त ओनली 2 पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है एंड रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स दे एज्यूम्स दैट दे आर कांस्टेंट। तो सेम वे ये पॉइंट में यही बताया जाता है दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी स्टडी किया जाता है वो अजम्पशन पे ही बेस्ड होता है। जैसे कि मैंने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बोला, प्राइस और डिमांड को डिसाइड किया जाता है। तो मैं बोली प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होता है, बट ऐसा भी हो सकता है अगर इनकम बढ़ा तो डिमांड कम नहीं हो सकता, राइट। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो इनकम को क्या किया जाता है, एज्यूम किया जाता है दैट इनकम इज कांस्टेंट। सो दिस इज व्हाट बेस्ड ऑन assumption। क्लियर, समझा सभी को? नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में भी हम लोग आगे के लेसन में पढ़ने वाले हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ मार्केट इज दैट इज मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। टू एनालाइज दिस मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस। Then last point is limited scope. Micro meaning में हमने पढ़ा था, micro means small. Okay, so here only individual units को स्टडी किया जाता है, स्लाइस करके स्टडी किया जाता है। Okay, partial equilibrium only 2 parts variables का स्टडी किया जाता है। So this is what scope of microeconomics is very limited because the name itself says it is micro, small. ओके तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है। क्लियर एवरीवन? आगे वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसकी फीचर्स। ओके, टिल दैट थैंक यू।